Welcome back to Cricket Cricket. This is Uzair Aman, your host, and I have with me Zarek Bhai. और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं that is पाकिस्तान का squad against South Africa. The series is just around the corner. We have our first T20 match on the 9th of December, which will be followed by 3 ODIs, and then we have a 2 test match series against them as well. So it's an exciting contest that's await us, and पाकिस्तान की जो जीत हुई है इस विद जिम्बाब्वे अभी तीसरा T20 कल होना है हमारा, बट वी वन कन्विंसिंगली. उसके बाद हमने ODI सीरीज में फर्स्ट मैच हारे थे, बट उसके बाद वी बाउंस बैक वेल. उससे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. तो एक अच्छी सीरीज विन हम लेके कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं साउथ अफ्रीका. बट फर्स्ट हम लोग तीनों स्क्वाड्स एक बार डिस्कस करेंगे. वील गो थ्रू ईच स्क्वाड टुगेदर एंड आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे. उसके बाद हम इन डेप्थ एनालिसिस भी करेंगे. सो वी स्टार्ट ऑफ विद द टेस्ट स्क्वाड. दे प्लेड रियली वेल अगेंस्ट इंग्लैंड और बाउंस बैक किया था फर्स्ट टेस्ट के बाद. आकिब जावेद ने जैसे कहा था कि आप स्पिन ट्रैक बनाओ, आप ड्राई कर दो पिच को, स्पिनर्स लगाओ, वो आउट होंगे और हम जीतेंगे. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डिड एंड वी वर सक्सेसफुल इन दैट. So test squad की जहाँ तक हम बात करें, we have Shan Masood captain, then we have Saud Shakil vice captain, Amir Jamal will be the bowling all-rounder, and Abdullah Shafiq and Babar Azam are there. Then we have Hasibullah as the backup wicket keeper. Then we have Kamran Ghulam, the upcoming star who scored tons of runs in the domestic circuit. We've got Khurram Shehzad, who is a good bowler, a good red ball experienced bowler, and he's coming back from injury, and we hope he stays fit because he is a crucial asset for Pakistan in Test cricket. Then we have Mir Hamza, a left-arm beautiful bowler, does not have express pace, but his line and length are always spot on. And then someone who I advocate for a lot, Mohammad Abbas. He's making a comeback after a long time. He's been playing Test cricket or 4-day cricket regularly in the domestic circuit, whether that be the English County or the Quaid-e-Azam Trophy as well. Then we have Mohammad Rizwan, who will be the first choice wicketkeeper. We've got Naseem Shah. Then we have Noman Ali, who had great success in the England Test series. We have Saim Ayub and Salman Ali Agha. Coming to the ODIs now, we've got Mohammad Rizwan, who is captain and the wicket keeper. Then we have Abdullah Shafiq, one of the openers. We've got Abrar Ahmed in the squad, who will be playing a crucial part as far as spin is concerned for Pakistan. And keep in mind, we've got a Champions Trophy coming up in February. तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने जो स्क्वाड बनाया है, मेजॉरिटी ऑफ द नेम्स यही होंगे जो कि चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे. We've got King Babar in the squad as well. He's going through a lean patch. He's getting the starts, but एक mental blockage है जिसकी वजह से he's not making it big. But we expect him to do well in South Africa. We've got Haris Rauf, an ODI specialist, a white ball specialist for Pakistan in the pace department. Then we've got Kamran Ghulam. We've got Mohammad Hussain. We've got Mohammad Irfan Khan Niazi in the lower order. We've got Naseem Shah, Saim Ayub, Salman Ali Agha. Shaheen Shah Afridi is in the ODI squad. Sufyan Mukim gets his maiden call-up in the ODI squad. And then we have Tayyib Tahir, who will be playing as a finisher most probably. And then we have Usman Khan, the backup wicket keeper and a specialist batsman in the middle order as well. I will now give Zarek Bhai the phone, and he can really call out the names of players who are included in the T20 squad. Thank you, Zair. So, okay, let's announce the T20 squad we have against South Africa. और इसमें आपको नज़र आ रहा है a nice blend of youth and experience, some surprise inclusions, and for me, some surprise exclusions as well. So let's start off. The white ball captain is there, Mohammad Rizwan. He will lead the side. उसके साथ आपने specialist spinner के साथ गए हैं Abrar Ahmed. Babar Azam is there. For me, it's a surprise inclusion, which we'll discuss later. इसकी debate तो होती रहेगी. उसके साथ फिर हम express pace Haris Rauf. Then we have a nice youth experience in the form of all-rounder Jahandat Khan. Then we have Abbas Afridi, Mohammad Hasnain, Mohammad Irfan Khan Niazi, Umair bin Yusuf, a very delightful inclusion. मैं इनका बहुत बड़ा fan हूँ जो ये record अपना domestic record लेके आ रहे हैं इधर. Saim Ayub, the dasher, Salman Ali Agha. I believe उनका अच्छा इन्होंने वाइस कैप्टन अनाउंस नहीं किए.
Yes. तो आई थिंक सलमान अली आगा इज नॉट अ वाइस कैप्टन हियर He yet. is not. तो उसके अलावा फिर एक्सप्रेस पेस में हम आते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी इज देयर, सुफियान मुकीम, अ वेल डिजर्व कॉल, हु इज बीन इन अ ग्रेट फॉर्म, आपने उनकी लास्ट मैच देखा है. देन वी हैव तैयब ताहिर द डैशर एंड उस्मान खान विकेट कीपर. सो वी हैव द स्क्वाड हियर. तो अगर स्क्वाड की अगर हम डिबेट में की जाए तो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द टेस्ट स्क्वाड. आई Sure, बिलीव let's do it. टेस्ट स्क्वाड में देखें इन्होंने हमने देखा है कि सबसे पहले मेरा था कि साउथ अफ्रीकन पिचेस जो कि हमेशा बाउंसी पिचेस होते हैं, एक बैट्समैन के लिए कहते हैं एक नाइटमेयर पिचेस भी कही जाती हैं. तो उसके लिए हमारे पास पेस अटैक क्या है. अगर हम इसमें उज़ैर पेस अटैक देखें, आई थिंक इसमें शाहीन शाह अफरीदी एक सबसे बड़ा नाम है जिसको हमने रेस्ट का नाम दिया गया है. आकिब जावेद का कहना है चीफ सेलेक्टर का कि हम इनको रेस्ट देंगे. उसके रिप्लेसमेंट में हम एक एक्सपीरियंस कैंपेनर जो कि डोमेस्टिक में हमेशा से परफॉर्म करते आ रहे हैं, जो कि उज़ैर के भी फेवरेट है. हिज नेम इज मोहम्मद अब्बास, अ वेरी ग्रेट सीम बॉलर. हम उनकी देख चुके हैं परफॉर्मेंसेस. उनका थोड़ा सा बस एक ये है वीक पॉइंट कि उनकी पेस ज़रा इन पिचेस में काम आएगी या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जिस तरह के वो बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो उस पर काम आ सकते हैं. तो आई थिंक अब्बास इज अ गुड इंक्लूजन. Bilkul, Abbas, as we talk about him, he's found great success playing for Hampshire in the county cricket in England. उसके बाद फिर पाकिस्तान में कायदे आज़म ट्रॉफी जो हुई, he was amongst the top wicket takers as well. इकॉनमी की जहाँ तक बात की जाए, there is no one better than Abbas. अगर हम कंट्रोल की बात की जाए, there is no one better than Abbas. और अगर हम इन कंडीशंस में सीम और स्विंग की बात की जाए, तो he is amongst the top contenders for that as well. तो अब्बास as we speak is this very seasoned campaigner. और अगर हम बात करते हैं टेस्ट स्क्वाड की, तो ज़रक भाई हमारे पास 5 पेसर्स की ऑप्शन है. वी हैव नसीम शाह, राइट. नसीम शाह इस पूरे स्क्वाड में मुझे वो बॉलर लगे हैं जिनकी पेस सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू मीर हमजा, कंपेयर टू खुरम शहजाद, कंपेयर टू मोहम्मद अब्बास एंड कंपेयर टू आमिर जमाल एज वेल. आमिर जमाल में भी पेस है, बट आई वुड put Naseem Shah ahead of him when it comes to bowling at high pace and swing. So I would say Naseem Shah will be the one who will be leading the lineup in terms of the bowling. इसमें जो पेस अटैक है, मेरा ओनली कंसर्न इज नसीम शाह की फिटनेस मुझे अभी भी कंसर्न देती है. सेकेंडली खुरम शहजाद भी इंजरी के बाद वापस कम बैक कर रहे हैं. बिल्कुल. मीर हमजा भी बीच में कहीं ना कहीं इंजरी प्रोन हुए हैं. Yes, तो यहाँ मुझे सिर्फ यही कंसर्न है कि ये पेस अटैक थोड़ा सा इंजरी प्रोन है. नसीम शाह नो डाउट बहुत पेसी बॉलर है, लेकिन ही इज बीन इंजरी प्रोन और उसकी फिटनेस का मुझे हमेशा से उसको अगर आपने नोट किया हो तो आई थिंक ही हैज गेन्ड अ बिट ऑफ वेट. ही हैज, राइट. People call it muscle, Yes. but it doesn't look No, like no. it. वो सबको पता है जी ये मसल वो कहाँ से आ रहा है. लेकिन आई बिलीव इसमें थोड़ी इंजरी प्रोन, लेकिन सारे बॉलर्स डोमेस्टिक आपके परफॉर्मर्स हैं. एक हम यहाँ एक अच्छा मैसेज आकिब जावेद ने हमें दिया है कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को ही चांस दिया जा रहा है. बिल्कुल ऐसे. Now, the big test for me is another chance given to Shan Masood as a captain. Shan Masood has been, I would say, fortunate enough कि वो उनके नाम पे एक लेबल लग चुका है कि he's been a winning captain against England. बिल्कुल. अब उनके बाद ये है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होगी. जो उन्होंने 150 की थी पहली इनिंग में मुल्तान फर्स्ट टेस्ट मैच, Yes. उसके बाद अगर आप अगले सेकंड इनिंग्स फर्स्ट टेस्ट मैच का और अगले 2 टेस्ट मैचेस देख लें, सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच, उनकी परफॉर्मेंसेस कोई इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी. तो अनदर चांस फॉर हिम एज वेल. उसके अलावा लेट्स सी, अब हमने एक एक्सक्लूजन जो जब बहुत बातें हो रही हैं इस वक्त, वो है साजिद अली के साजिद खान. साजिद खान की जो एक्सक्लूजन है उस पर हो रही है. लेकिन आई बिलीव कि क्योंकि एक बाउंसी ट्रैक है तो आई थिंक एक स्पिनर इज मोर देन एज एन ऑप्शन, जिसको मुझे भी नहीं लगता कि नुमान अली को इतना चांस दिया जाएगा. But I think Sajid Khan, he took 19 wickets against England. Sajid Khan ने नीचे से runs भी आपको बहुत crucial बना के दिए थे. ही शुड बी इन द स्क्वाड एट लीस्ट. And he should have been in the squad. But Zahir भाई, आप जैसे शान मसूद की बात कर रहे थे, I think the problem with Shan Masood in recent times has been that he's gone for quick runs rather than staying on the crease and look to score runs according to his strength. बट मुझे उम्मीद शान मसूद से इसलिए ज़्यादा है इस टूर पे कि साउथ अफ्रीका की पिचेस हैं, बाउंस होगी. शान मसूद इज अ टॉल लैड, ही कैन प्ले द बाउंस वेल, कैन नेगोशिएट विद इट एज वेल. I hope so. But- But it's a nice squad, and I hope कि जो हमारे इसको थोड़े से लैग कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे एक्सपीरियंस बैट्समैन जिनको हम किंग कहते हैं,
by name of King Babar. उनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन, और ऑस्ट्रेलिया और सॉरी साउथ अफ्रीका में उनका रिकॉर्ड हमेशा से बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, वेदर इट्स द वाइट बॉल और रेड बॉल. बिल्कुल तो ऐसे ही। आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू दिस टेस्ट स्क्वाड एंड आगे चलते हैं. आगे बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे ओडीआई स्क्वाड की. ओडीआई में भी हमारे पास, अब आप, मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो ये लगी है दैट वी हैव स्टेड कंसिस्टेंट विद आवर सिलेक्शन व्हेन इट कम्स टू द ओपनर्स. पाकिस्तान के ओपनर्स जो है रिसेंट टाइम्स में बहुत चेंज हुए हैं, बट ओडीआई स्क्वाड में जो सबसे बड़ा आप बोलें जो एक मिसिंग लिंक है, या एक बहुत पब्लिक ओपिनियन भी ये है, हमारी भी, आई एम श्योर आपकी भी ये होगी, फखर जमान इज मिसिंग इन द स्क्वाड. Yes. According to PCB, he is still not fit. He is still not 100% to play. He is in plans of playing the Champions Trophy, which will be in Pakistan. आई थिंक अभी inshallah. डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी पाकिस्तान में कोई चल रहा है जिसमें उनको मैच फिटनेस का टाइम पाकिस्तान का भी बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है 7th of December से. हम उसके बारे में भी आपको अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे, बट अभी फॉर द टाइम बीइंग ओडीआई स्क्वाड में फखर जमान नहीं है. कीप इन माइंड हिज परफॉर्मेंसेज इन द रीसेंट पास्ट इन साउथ अफ्रीका. जब वो 193 उन्होंने मारा था, he took the match close single-handedly. I think Fakhar Zaman is the player who can take the match away from any opponent single-handedly, number one. Number two, there is no other batsman in this Pakistan squad who can really be an X-factor, can dominate the game. And जो हमारी अभी 50 ओवर फॉर्मेट का टेम्पलेट चल रहा है, उस पर कोई सेट होता है. बट ओवरऑल देखा जाए तो दिस स्क्वाड लुक्स वेरी सेटल. बिल्कुल. और अभी अभी ऑस्ट्रेलियन सीरीज जीत के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आ रहे हैं, एंड आई थिंक द स्क्वाड लुक्स वेरी वेल बैलेंस्ड. एंड इसमें एक जो इंक्लूजन जो आई है ओडीआई में वो है सुफियान मुकीम की. बिल्कुल. आई थिंक ही इज अ वंडरफुल बॉलर. उसके अलावा बैलेंस भी है फास्ट बॉलिंग का, बैटिंग का. तो आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एज वेल, क्योंकि अब रिजवान की एक और बड़ी असाइनमेंट आ गई. ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने पास कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साउथ अफ्रीकन सीरीज एंड लेट्स विश देम ऑल द बेस्ट. बिल्कुल. सुफियान मुकीम जैसे आए हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन द T20 सीरीज. Yes. He's made a record for Pakistan as well for the best bowling figures in T20s. He took 5 wickets in the second ODI, conceding just 3 runs. So he's been in remarkable touch. But Sufyan Mukim आए हैं फैसल अकरम की जगह. I think the main difference between both these bowlers is कि सुफियान मुकीम ज़रा थोड़ी पेस के साथ बॉल डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से, और हाइट भी है जिसकी वजह से उनको बाउंस भी मिलता है, एंड ही इज निपी एज वेल. उनका एक्शन बहुत प्यारा है, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा. बिल्कुल. तो आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई सुफियान मुकीम हैज बीन पिक्ड ओवर फैसल अकरम. बाकी आई थिंक द स्क्वाड लुक्स बैलेंस्ड, बट एक बात जो मुझे मिस कर रहा हूँ, जो लैक कर रही है अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज पावर हिटिंग. आपके अगर मिडिल ऑर्डर देखें, जो नीचे से प्लेयर्स आएंगे खेलने के लिए, उनमें से इट विल बी तैयब ताहिर. जो प्रोबेबल्स हैं जो लोग खेलेंगे, तैयब ताहिर, वीव गॉट सलमान अली आगा, वीव गॉट मोहम्मद इरफान खान नियाजी, वीव गॉट दीज 3 प्लेयर्स. तो इनमें से कौन ऐसा प्लेयर है जो कि आप 40th ओवर के बाद बोलें कि यार ये ओवर में मुझे एक छक्का या मुझे एक ओवर में 10 रन लेके दे सकता है. So these are all the names that are in contention for the Champions Trophy as well. I'm sure inshallah they'll do well. And पावर हिटिंग की बात की जाए तो ऑब्वियसली लैग कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में, बट आई एम श्योर सलमान अली आगा हो गया, इरफान खान हो गया, इनको इसी बेसिस पे किया गया. आई थिंक पीएसएल के बेसिस पे भी इनको सिलेक्शन दी गई थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई एम श्योर अगर सलमान अली आगा की जो लास्ट पीएसएल में स्ट्राइक रेट था दैट वाज अबव 140, तो ही कैन हिट द बॉल उसके लगा. लेकिन आई एम श्योर इट्स द इंटेंट दैट मैटर्स, एंड वी जस्ट विश के सलमान अली आगा को एक नया अपॉर्चुनिटी दी गई है. टेस्ट के साथ इनको वाइट बॉल में भी कॉन्फिडेंस दिया जा रहा बिल्कुल ऐसा ही है. है, एंड अगर उनको इसलिए दिया जा रहा होगा क्योंकि दे कैन सी समथिंग इन हिम, एंड वी जस्ट होप दैट ही डिलीवर्स एंड ही मेक्स all of us proud. बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा ही है. Let's move on to the T20s now. We talk about the T20 squad. T20 series भी अभी कल लास्ट मैच है हमारा जिम्बाब्वे के साथ. We won the series 2-0 and उसमें जो है अगर आप देखें तो the squad is somewhat similar or it's almost the same that we've taken to Zimbabwe. A few changes would be कि बाबर आजम is back. अब देखा जाएगा कि ओपन करेंगे बाबर या नहीं. Then we've got Rizwan coming back into the side as captain. Salman Ali Agha was the captain in Zimbabwe, और Rizwan को rest दिया गया था, but now Rizwan will be back as captain and the main wicket keeper as well. Then we've got Mohammad Hasnain in the T20 squad. We've got Umair bin Yusuf is still there, and we've got Shaheen Shah Afridi coming back into the squad. अब देखना ये जाएगा
कि हम लोगों ने कितने ओपनर सेलेक्ट किए हैं स्क्वाड में. We've got मोहम्मद रिजवान ओपनर, we've got बाबर आजम ओपनर, we've got उमैर बिन यूसुफ ओपनर, we've got साइम अयूब ओपनर, we've got Tayyib Tahir who is a middle order player, we've got Usman Khan who is a top order player as well. So we've got 5 players who play in the top order और आपने अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप अब इन 5 से 6 लोगों में बनानी है और देखा जाएगा इसमें से किसको क्या रोल दिया जाएगा. So if I were to ask you Zarak bhai, who would your openers be in this from the squad? यार मैं तो जाऊंगा T20 इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड डैशिंग. इसमें आप वो भूल जाएं कि आप तरीके से जाएंगे पावर प्ले बिल्ड इन इनिंग्स करेंगे. वो अब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं. गेम हैज़ मूव्ड ऑन वेरी फास्ट नाउ. लोग अब जहाँ हम लोग पहले शुरू करते थे, हम पहले बड़ा सपोर्ट हमने भी किया, मैं भी उनमें से हूँ, जिसमें बाबर आजम और रिजवान को ओपन हमने करते हुए देखा. लेकिन अब वो ख़त्म हो गया. जहाँ 6 ओवर्स में 40 रन बनाते थे वो अब लोग 6 ओवर्स में 60 to 70 रन पे अब लोग पहुंच गए. बिल्कुल. So we need someone who can give a great impact in that power play. So Saim Ayub is right there for me at the top. Okay. Now there is a big debate कि आप साइम अयूब के साथ किसको भेजेंगे. For me, I think बाबर आजम should be there with साइम अयूब because बाबर आजम 6 ओवर के बाद थोड़ा सा मुझे उसकी प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उसके लिए बिग हिटिंग साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स भी आपके कुछ ऐसे होंगे जो ग्राउंड्स बड़े होते हैं, तो उसमें बिग हिटिंग में बाबर के लिए मसला आ सकता है. तो आई वुड से बाबर शुड टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डोमिनेटिंग इनिंग्स खेले एंड ही शुड डोमिनेट द पावर प्लेस विद साइम अयूब. Right. तो आई वुड गो विद दीज. थर्ड में आते हैं. अच्छा आपने खुद ही मेंशन किया पावर प्ले टॉप ऑर्डर इतना भरा हुआ है कि खुद भी कंफ्यूजन हो जाती है किसको. बिल्कुल ऐसे ही. तो आई वुड से यहाँ पे क्योंकि उमैर बिन यूसुफ ने एक बहुत अच्छी चांस ली. उमैर बिन यूसुफ बाबर आजम के दरमियान होता है, लेकिन बाबर आजम को मैं इसी ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि वो पावर प्ले को डोमिनेट करे. उमैर बिन यूसुफ को मैंने जहां तक थोड़े से अभी जो इनिंग्स देखी है, ही हैज द शॉट्स टू प्ले आफ्टर पावर प्ले एज वेल. Right. तो उमैर बिन यूसुफ को आई वुड से रादर, मैं तो वैसे अगर मेरे पे हो, पहले तो मैं बाबर आजम की इंक्लूजन पे थोड़ा मुझे क्वेश्चन मार्क था. आई वुड रादर से कि बाबर आजम को ड्रॉप किया जाता T20 से और उन्हीं प्लेयर जो जिम्बाब्वे में जो कॉन्फिडेंस इनको दिए उन्हीं को खिलाया जाता. Right. तो फिर रिजवान किधर जाएंगे? He's the captain. You can't drop him. अब ये अच्छा मेरी उजैर से यही बहस हुई है कि मैं आई वाज देयर बाबर और रिजवान से मैं एक होऊंगा. सो इफ आई वांट टू सी मेरी ओपिनियन, मैं पहले गेम की ओपिनियन से देख रहा था. इफ यू वांट टू सी माय ओपिनियन आई वुड टेल बाबर आजम टू टेक अ रेस्ट. You can't do that. आई वांट बाबर आजम टू टेक अ रेस्ट. और उसी जो जिम्बाब्वे में आपने जो प्लेयर्स को चांसेस दिए, आप उनको चांस दो. आप उनको एक मैच के बाद उन्होंने आपने बुला दी जी बाबर भी आ जाओ, रिजवान भी आ जाओ, शाहीन भी आ जाओ, नसीम शाह भी आ जाओ. आप ऐसे नहीं कर सकते. आपने जो जिम्बाब्वे में इतने लोगों ने, सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया, उमैर बिन यूसुफ की आपने शॉट्स देखी, एक वो आपको प्रोस्पेक्ट नजर आया, तो आप इनको चांस दो. तो व्हाई नॉट गो फॉर आप उमैर बिन यूसुफ और साइम अयूब को आप क्यों नहीं ओपन करा सकते फिर से, ये मुझे आप बताओ. तो फिर रिजवान और बाबर कहाँ जाएंगे? मैं रिजवान आपको का पहले कह रहा हूँ बाबर को रेस्ट करवाओ. अच्छा. आप बाबर को रेस्ट T20 में, आप बाबर टेस्ट भी खिला रहे हो, आप बाबर को वनडे में भी खिला रहे हो, तो बाबर को T20 से रेस्ट करा दो. जबकि इतना जबरदस्त आपका एक जिम्बाब्वे में कॉन्फिडेंस लेके जा रही है कि यार हमारे यंगस्टर से परफॉर्म किया है, लेट्स टेक देम फॉरवर्ड. और चलो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुरा ही होगा, क्या होगा, हार जाएंगे, कम से कम वो एक्सपीरियंस वो लेके जाएं कि क्या दिलीरी से खेलो. I respect his opinion, but I'm all in for Babar being a part of all 3 squads, and he's a core component of Pakistan cricket right now. But that's another discussion to do in later. और हम लोग सारे स्क्वाड्स की अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे जिसमें हम इन डेप्थ प्रॉबेबल 11s भी बनाएंगे अकॉर्डिंग टू अस व्हाट द बेस्ट 11s आर. हमने कौन सा प्लेयर क्यों चूज किया, किस पोजीशन पे चूज किया. सो वील डू दैट फॉर लेटर. तो व्हाट्स योर टॉप 3? My top 3 would be Saim Ayub, Babar Azam openers, and then we have Rizwan. Because we've seen in the past Saim Ayub. आप नहीं चाहते ये टीम पावर प्ले में 60-70 रन बनाए. You want 35-40 runs in 6 overs? If I talk about Babar Azam's performance in Australia, Babar Azam ने जो 30-20 Hobart में खेला गया था, he was the only batsman who was playing with a strike rate of more than 140 runs. My point is this, मिडिल ऑर्डर में भी तो लोगों को है ना, उनको I think it's important for us to realize that Babar Azam is not the problem. The players around him need to contribute to the team's cause as well. But again, जैसे मैंने पहले कहा है, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस की जाएंगी. But it's a good spot. I'm not saying कि बाबर ने हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दी है. He's been a successful captain as well for us as well. तो इसमें इट्स अ नाइस ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस. शाहीन शाह भी वापस आए हैं इसमें आपके. मैं अच्छा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू नाइस पेस बैटरी इन शेप ऑफ मोहम्मद हसन एज वेल. जब हसन ने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कराई, इसका एक्शन मुझे इतना प्यारा लगा. आई थिंक ही वर्कड ऑन हिज एक्शन एज वेल.
तो बाकी भी हमारे पास हैं, अब्बास अफरीदी है, क्या कहते हैं, सलमान अली आगा को भी चांस दिया जा रहा है, तैयब ताहिर जो हमें जिम्बाब्वे में उसने मिडिल इनिंग्स में दिखाया कि एंड ओवर्स में वो पावर हिटिंग कर सकता है, बिल्कुल accelerate कर और सकता है। इरफान खान नियाजी हैज बीन अ वेरी सरप्राइजिंगली प्लेजेंटली सरप्राइजिंग इंक्लूजन फॉर मी कि वो परफॉर्मेंस भी दे रहा है, एंड प्लस उसने जो फील्डिंग में हमें एक एडवांटेज दिया बिल्कुल, है। ऑस्ट्रेलिया में भी मुझे याद है जो हमें जो मैचेस कहीं उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग कैचेस लेके उसने मैच उसमें फंसाया भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल So ऐसा ही है। I love the squad as well. I just wish them all the best, and let's get I the think trophy. it's a great squad. All three of them. Obviously, everyone has their opinions about their dislikings and likings as well. But again, a very balanced squad overall, and we would like to wish Pakistan the best of luck for this tour. Yeah. And you've got our support. You've got all the backing, and Just go there and perform. That's all we want. very important for us to perform and really get the momentum. And obviously, South Africa considered as one of the most difficult places to bat in and to perform as for a visiting side. It's high time we really stamp our authority there as well. So बाकी और भी जो अपडेट्स आपको क्रिकेट की तरफ से मिल रही हैं आपको हम प्रोवाइड करेंगे ऑन क्रिकेट before we end the show, before we end the video here, we would all request you, if you like the video तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, share with your family, with your friends and the cricket fraternity as well, and आप मुझे बताएं in the comment section who you think is going to win the series and who you think would be the standout player for Pakistan. तब तक के लिए इजाज़त मांगते हैं. Thank you so much. Uzair Aman, Zara Kaman signing off from Cricket Shikar. Thank Thank you. you.